So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to talk about the basic fundamental rights. Today we are going to talk about the basic fundamental rights in 1973 Constitution. The experts of constitutional law believe that without fundamental rights and directive principles of policy, 1973 Constitution would have just a mechanical procedural document which used to direct how to regulate state affairs. But ये जो फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का जो पार्ट 2 है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 of fundamental rights and directive principles of policy, it has given life to the constitution. So constitution की ये जो fundamental rights and directive principles of policy has given life to the constitution. Otherwise 1973 constitution might have become a mechanical procedural document बन जाता. अच्छा, before directly going to discuss how many fundamental rights are there in 1973 Constitution, what kind of protections Constitution is going to give to the citizens of Pakistan, and what is the difference between the fundamental rights and the directive principles of policy. First of all, we have to understand what is meant by right. What is the difference between fundamental rights and human rights? When we would be getting the basic understanding of the definition of a right, that difference and similarities between the fundamental rights and the human rights, then we would be discussing what kind of fundamental rights fundamental rights are being promised by 1973 Constitution with the citizen of Pakistan. So let's start with the definition of a right. Rights refer to the moral and legal entitlement over something. Rights क्या हैं जी? Rights refer to the moral and legal entitlement over something. So basically, rights are the reasonable claim of the individuals which are accepted by society, enforced by the state, approved by the statute. So rights could be fundamental and rights could be human rights. Let me say it again. Rights refer to the moral and legal entitlement claimed by humans over something. So according to the law, rights are the reasonable claim of individuals which are accepted by society, approved by statute, and enforced by the government. So rights could be fundamental rights and rights could be human rights. इसका मतलब ये है कि राइट्स फंडामेंटल राइट्स भी हो सकते हैं और ह्यूमन राइट्स भी हो सकते हैं. राइट्स तो हमने देख लिया, ये किसी भी शख्स का एक इखलाकी और कानूनी हक है किसी एक चीज़ पर. अब ह्यूमन राइट्स को अगर हम कहें, ह्यूमन राइट्स, द राइट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन राइट्स क्या है? राइट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स. और फंडामेंटल राइट्स क्या है? राइट्स ऑफ द सिटीजन. ये फ़र्क आप लोगों ने समझना है. राइट्स जैसा कि मैंने बताया कि आर द मॉरल एंड लीगल एंटाइटलमेंट ओवर समथिंग. इट कुड बी फंडामेंटल राइट्स, इट कुड बी ह्यूमन राइट्स. अब अगर ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स को अगर हम देखें, ह्यूमन राइट्स मीन्स राइट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग.
और फंडामेंटल राइट्स मीन्स राइट्स ऑफ अ सिटीजन। सो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है 1 अंडर पार्ट 2 from articles 8 to 28 of the constitution deal with the all fundamental rights given to the citizen of Pakistan। 1973 का constitution का part 2 chapter 1 is all about the fundamental rights, and there are 20 articles which are dealing with the 23 fundamental rights given to the citizen of Pakistan. So the citizen of Pakistan, they enjoy 23 basic fundamental rights, and these fundamental rights are written in 1973 Constitution, the part 2 of this Constitution, and chapter 1 carrying 20 articles dealing with 23 fundamental rights। अब अगर हम देखें जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स, दीज आर द नेचुरल राइट्स विच आर पर्सनल टू द सिटीजन ऑफ अ फ्री स्टेट। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर अलाइक टू एवरी मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि एल्डर पीपल दे आर गोइंग टू एंजॉय डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स and child they are going to enjoy different fundamental rights। So fundamental जो rights हैं, they are natural rights, and these natural rights are personal to the individuals as the citizen of a free state। and jurist कहते हैं fundamental rights they are basically derived from the natural law or the fundamental law। तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि फंडामेंटल क्या है, ये नेचुरल राइट्स हैं। और अगर इसको ज़्यादा सादा लफ्ज़ों में हम कह सकें, फंडामेंटल राइट्स आर द फंडामेंटल टू द लाइफ ऑफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर फंडामेंटल टू द लाइफ ऑफ सिटीजन्स। अब ये कौन कौन से राइट हैं वो आगे बाद में हम देखेंगे, जैसे कि राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू प्राइवेसी है, वगैरह वगैरह। तो ये तो फंडामेंटल राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स कौन से? ह्यूमन राइट्स बिलोंग टू द ऑल ह्यूमन बीइंग्स irrespective of their nationality, irrespective of their culture, color, caste, creed, language, religion and gender। Human rights, they belong to the all human beings। Fundamental rights belong to the citizen of a state, and human rights belong to the all human beings irrespective of their nationality। अब अगर कोई बंदा पूछ पाए what is the difference between fundamental rights and human rights, तो पहला जो डिफरेंस हमने देखा वो ये है कि जो फंडामेंटल राइट हैं दे आर कंट्री स्पेसिफिक, whereas जो ह्यूमन राइट्स हैं दे हैव देयर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस। फंडामेंटल राइट have a country, they are country specific, they have their acceptability within a country, whereas when it comes a matter of human rights they have worldwide acceptance। जो human rights हैं they are universal, यानी कि a human being who is living in America, living in Congo, Africa, living in Far East Asia or Oceania, wheresoever a person who is living according to the United Nations Charter of Human Rights, no matter where a human being is living, that human being is entitled to have human rights. That's why human rights, they are termed as universal, absolute।
means they cannot be taken away by anybody. Human rights cannot. अच्छा, fundamental rights on one pretext or the other within a state, they could be taken away. Fundamental rights छीने जा सकते हैं citizen से, लेकिन when it comes a matter of human rights, they are universal, they are absolute. So human rights जो हैं ये they cannot be separated from the human beings, and they are universal in approach. So human rights की 2, 3, 4 जो फीचर्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, वो क्या हैं? Human rights, they are universal, they are not country specific, they are not territory specific, they are universal. Inviolable, human rights जो हैं they cannot be violated. नॉन ट्रांसफरेबल, ऐसा नहीं है कि आप एक इंसान को एक तो ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट कर लो लेकिन दूसरे को ना करो. एंड ह्यूमन राइट्स दे कुड नेवर बी दे कुड नॉट बी रिनाउंस्ड, उनको रिनाउंस भी नहीं किया जा सकता. ये दे आर ह्यूमन राइट्स, दे आर अनरिनाउंसेबल. लेकिन फंडामेंटल राइट्स ऐसे नहीं. अब अगर मैं ज़्यादा बेहतर अंदाज में अगर आप लोगों को बता पाऊँ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स. सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. ह्यूमन राइट्स दे नेवर वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दे आर यूनिवर्सल. कहते हैं इफ अ फंडामेंटल राइट is willing to exist, then there must be a human right. So what does it mean? It means that human right is prior to the fundamental right. बच्चों मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? Human right is prior to the fundamental right. अब जरा इसके थोड़े से डिफरेंस देखें. कहते हैं क्या फंडामेंटल राइट और बेसिक में और क्या फ़र्क है विद रेफरेंस टू दी जुरिस्डिक्शन, विद रेफरेंस टू दी यूजेबिलिटी, क्या डिफरेंस है इनके अंदर? फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड द प्राइमरी राइट्स और ह्यूमन राइट्स आर कंसिडर्ड एज द बेसिक राइट्स. अब द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी राइट्स एंड बेसिक राइट्स क्या है? प्राइमरी जो राइट्स हैं, primary rights are those rights which entitle a person free from a particular unlawful conduct, और ये स्टेट ही दे सकती है. और जो बेसिक राइट क्या हैं? जो बेसिक राइट आर द फ्रीडम्स ऑफ ऑल ह्यूमंस, द राइट्स ऑफ लाइफ जैसे है, ये ह्यूमन राइट है. फंडामेंटल राइट का मैंने आपको बताया दैट आर the right to be free from the particular unlawful conduct, और ये स्टेट इंश्योर करती है. लेकिन जो ह्यूमन राइट्स हैं they are basic rights, and the basic rights are the rights and the freedom to which all humans are considered to be entitled. The right to life. अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया. अच्छा, अब बेसिक जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बेसिक राइट है. ये अनलॉफुल कंडक्ट से इंसानों को आज़ाद करते हैं. लेकिन जो ह्यूमन राइट्स है दे आर ह्यूमन राइट्स. अच्छा, अब एक और फ़र्क है ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स में. बेसिक राइट्स कुड बी इंटरवीनेबल बाय द स्टेट. अगर स्टेट महसूस करती है कि सम पार्टिकुलर सिचुएशन इज कमिंग अप इन द within the territory, and they come up with some extraordinary they are facing some extraordinary circumstances, and to deal with some extraordinary circumstances they need extraordinary laws, and through those laws state is going to intervene in the basic rights of citizens of the country. So जो fundamental rights हैं वो basic rights के ऊपर applicable होते हैं, और बेसिक राइट्स कौन से होते हैं? जिसके ऊपर स्टेट इंटरवीन कर सकती है. यानी कि फंडामेंटल राइट्स लिए भी जा सकते हैं और दिए भी जा सकते हैं. लेकिन जो ह्यूमन राइट्स हैं,
human rights, they are applicable both on basic rights and absolute rights. Basic right कौन सा है? जिसके अंदर state can intervene. और absolute right कौन सा है? जिसके अंदर state cannot intervene. So basic rights which are intervenable and absolute rights which are not intervenable. So fundamental rights are applicable on basic rights, but human rights they are applicable on basic as well as absolute rights. जैसा कि हमने पहले बताया, फंडामेंटल राइट्स आर रिलेटेड टू द बेसिक राइट्स, और ये कंट्री स्पेसिफिक हैं, और ह्यूमन राइट्स दे आर यूनिवर्सल. द बेसिक एसेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट इज द राइट ऑफ फ्रीडम. लेकिन जो बेसिक एसेंस ऑफ ह्यूमन राइट है, इट इज़ द राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी. अब यहाँ पे फ्रीडम की बात करते हैं, वहाँ पे राइट ऑफ लाइफ की बात करते हैं, इसलिए इट इज़ यूनिवर्सल. अब क्वेश्चन आता है, जो डिफरेंस है दोनों के अंदर. जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर गारंटीड बाय द स्टेट एंड एनफोर्स बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. कोर्ट ऑफ लॉ इनको इन्फोर्स करती है. और जो ह्यूमन राइट्स हैं, दे आर इंटरनेशनली गारंटीड, एंड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है, यूएन ह्यूमन राइट्स जो लॉ है, वो इसकी इन्फोर्सेबिलिटी इंश्योर करती है. अब मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ. बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इफ अ स्टेट इज, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, for every fundamental right is has to what? For every fundamental right it has to first human right. So हर fundamental right human right होता है. अब जरा गौर से देखिएगा, जो बड़ा अहम इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि रोहिंग्या का हमने म्यांमार क्या कर रहा था कि रोहिंग्या के अंदर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स थे, लेकिन वहाँ पे एथनिक क्लिंसिंग शुरू हो गई. एथनिक क्लिंसिंग शुरू होने के बाद क्या हुआ कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स वॉच ने उसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया, और ये डिक्लेयर करना शुरू कर दिया कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं. स्टेट बेसिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं कर रही, बल्कि यहाँ के उनकी जो राइट ऑफ लाइफ है वो भी ले ली गई है, जो कि हर इंडिविजुअल और सिटीजन का राइट है, द राइट टू लाइफ. तो यूनाइटेड नेशन ने प्रेशराइज करना शुरू कर दिया. इस तरीके से इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हुआ, और फिर म्यांमार गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि वो ये एट्रॉसिटीज़ उनके ऊपर कम करें. तो ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, जो फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम, और जो ह्यूमन राइट है, इट इज़ द राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी. ये डिग्निटी के साथ है. तो ये मैंने आप लोगों को बताया व्हाट इज राइट, व्हाट इज फंडामेंटल राइट, एंड व्हाट इज ह्यूमन राइट, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड ह्यूमन राइट. इसके अलावा अब हम आते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. जैसा कि मैंने बताया, द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर, जो पार्ट 2 है, उसका चैप्टर नंबर 1 है. इट इज़ हैविंग टोटल 7 to 40 आर्टिकल्स, एंड पार्ट 2 of 1973 Constitution is further divided into 2 chapters. Chapter number 1 is related to the fundamental rights, and chapter 2 is related to the directive principles of policy. Today we are going to talk about the fundamental rights, or chapter 2 is having article, there are almost 20 articles starting from article 8 to 28. और जो डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह. तो अब since we are having our direct connection to this topic of discussion related to the fundamental rights, तो उसके ऊपर देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दे आर बीइंग गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान. आर्टिकल
8 से आर्टिकल 28. So there are total 20 articles related to the fundamental rights, but these 20 articles, they are going to protect 23 fundamental rights. 23 fundamental rights given to the citizens of Pakistan. अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये देखना है, पहले हम बाद में डिस्कस करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हैं कौन कौन से, लेकिन उससे पहले फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कैसे किया जाता है एंड हाउ फंडामेंटल राइट्स दे आर बीइंग यूजर्प्ड, दे आर बीइंग सस्पेंडेड. पहले इस चीज को देख लेते हैं. व्हाट इज द प्रोसीजर? What is the procedure for the promulgation or the imposition of fundamental rights in our country? What is the process? How fundamental rights they are being enforced in our country? Uske within the constitution there are two articles. Article 183 subsection 3, 184 सेक्शन 3 जो इसका है. आर्टिकल 183 सबसेक्शन जो आर्टिकल 184 एंड सबसेक्शन जो 3 है, इट प्रोवाइड्स द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स इन आवर कंट्री. गौर से सुनिएगा. 184 सबसेक्शन 3 provides the original jurisdiction to the Supreme Court to enforce fundamental rights in our country. याद रखिएगा, ये जो सो मोटो है, जितने भी सो मोटो सुप्रीम कोर्ट लेती है पाकिस्तान के अंदर और जो हाई कोर्ट्स लेती हैं, वो बेसिकली every so moto action is taken by Supreme Court or other court keeping in view the area के Supreme Court believes that the any action by the executive is going to suppress the basic fundamental rights of the citizens of Pakistan. Then the state Supreme Court usually takes the suo motu notice. ये आर्टिकल 184 सबसेक्शन जो 3 है, दिस प्रोवाइड्स सुप्रीम कोर्ट द राइट टू टेक सो मोटो इन ऑर्डर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स. अब इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि फूड सिक्योरिटी का जब प्रॉब्लम क्रिएट होता है, शुगर सिक्योरिटी या कुछ भी जो लोगों के बेसिक इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट कभी शुगर की प्राइसेस के ऊपर, कभी बिजली की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस के ऊपर, कभी एग्जेक्टिव ने कोई एक्शन लिया है उसके ऊपर पिटीशन होगी, उसके ऊपर नोटिस ले लेती है, या स्टेट फेल हो जाती है टू इंश्योर दी फ्रीडम द राइट टू लाइफ. अगर किलिंग शुरू हो जाती है तो सो मोटो ले लेती है, कीपिंग इन व्यू दी बैड लाइन ऑर्डर सिचुएशन इन द कंट्री. तो सो मोटो जो भी लिए जाते हैं मुल्क के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है अंडर आर्टिकल 184 सबसेक्शन 3 के तहत. इसके अलावा ये तो स्टेट लेवल पे हो गया, सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू टेक एक्शन. अब हाई कोर्ट्स को प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी टू इंश्योर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और उसमें आर्टिकल 199 199 का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 199, ये सुप्रीम हाई कोर्ट को अथॉरिटी देती है कि हाई कोर्ट कैन अडॉप्ट 4-5 डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्स, जैसे कि रिट ऑफ मैंडेमस है, रिट ऑफ को वारंटो है, रिट ऑफ हर्बियस कॉर्पस है. ये जो रिट्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, और रिट ऑफ टर्शियोरी है, ये जो रिट ऑफ सर्शियोरी जो है, ये जुडिशियल रिव्यू को डिस्कस करती है.
मैंडेमस है, रेट ऑफ प्रोहिबिशन है, रेट ऑफ को वारंटो है, रेट ऑफ हार्बी कॉर्पस है। ये जितनी भी आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को इख्तियार देता है टू सी के वेदर ह्यूमन राइट्स दे आर बीइंग एनफोर्स और नॉट, उसके तहत हाई कोर्ट्स दे कैन इशू 5 डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्स। और ये रिट्स कॉन्स्टिट्यूशन देता है हाई कोर्ट्स को कि हार्बियस कॉर्पस क्या है, किसी भी शख्स को हब्स बेजा में रखना, ये उसके बेसिक फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन है। तो ये हार्बियस कॉर्पस, रेट ऑफ हार्बियस कॉर्पस जारी करती है। उसके बाद को वारंटो, जिसको स्टे ऑर्डर कहते हैं, अगर किसी का बेसिक फंडामेंटल राइट यूजर हो गया, चाहे प्रॉपर्टी में है चाहे किसी में भी, तो को वारंटो ले लेते हैं। प्रोहिबिशन है, हाई कोर्ट ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट्स, दे आर एंटाइटल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 टू एनफोर्स बेसिक फंडामेंटल राइट्स। तो इसी वजह से दीज कोर्ट्स दे आर व्हाट, दे आर द कस्टोडियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। तो ये मैंने आपको बताया। अब इसके ऊपर वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके तहत बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान दे कुड बी टेकन अवे, दे कुड बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 233 provides some grounds for the suspension of fundamental rights in the country, and that is all about the imposition of emergency in our country. जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 233 इज रिलेटेड टू द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी, और जब इमरजेंसी इम्पोज होती है ये, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज गोइंग टू इम्पोज इमरजेंसी इन द होल कंट्री, तो क्या होता है, आउट ऑफ 23 बेसिक फंडामेंटल राइट्स, एटलीस्ट 6 फंडामेंटल राइट्स दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। और ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन देता। अब ये मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ कि मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, बैड लाइन ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई, या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, और जो गवर्नमेंट्स हैं और जो एग्जेक्टिव हैं दे आर नॉट एबल टू डील विद दोज डिज़ास्टर्स और सिचुएशंस, देन फिर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है। तो मैंने आपको बताया द मैकेनिज्म ऑफ एनफोर्सेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन and the mechanism for the suspension of fundamental rights in our constitution। ये अभी अब इसके ऊपर अगर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन करना है, कोई बात पूछनी है, तो प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा, अब ये जो चीज़ें अभी हमने देखी हैं विद रेफरेंस टू द एनफोर्सेबिलिटी एंड द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अब आते हैं राइट कौन कौन से हैं। याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स in 1973 Constitution could be categorized into 3 kinds. They could be categorized into 3 kinds. One is the first category है, that is related to the rights of persons, individual citizens. ये personal rights हैं, and the rights of individual citizens are dealt through the Article 9 to 14. These 6 different articles, they are directly related to the fundamental rights of the citizens. Fundamental rights, rights to liberty है, rights to life है, और these are supreme fundamental rights. और ये जो सुप्रीम फंडामेंटल राइट्स हैं, दे आर डायरेक्टली बीइंग डेल्ट बाय आर्टिकल्स 9 to 14. जो दूसरी कैटेगरी है, जो सेकंड काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, दैट आर रिलेटेड टू दी सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल लिबर्टीज, एंड सिविल राइट्स, सिविल लिबर्टीज, पॉलिटिकल राइट्स, पॉलिटिकल लिबर्टीज, they are further divided into 3 subcategories.
जैसा कि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 एंड 19 दे डायरेक्टली डील विद द सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज एंड राइट्स। उसके बाद जो सेकंड सब कैटेगरी है ऑफ सिविल लिबर्टीज, दे आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक राइट्स एंड इकोनॉमिक लिबर्टीज। and economic rights and economic liberties of the citizens of the state, they are dealt through the Article 18, Article 23 and Article 24. और इसकी जो थर्ड सब कैटेगरी ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज that are related to the religious rights and religious rights of the citizens of Pakistan. The fundamental religious rights of the citizens of Pakistan, they are directly dealt by Article 20, Article 21 and Article 22. तो मैंने आपको बताया जो fundamental rights, they are further categorized into three kinds. First kind is the individual rights, ये जो supreme rights भी इसको supreme fundamental rights कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से हैं? The right to life है, द राइट टू लाइफ है, द राइट टू लिबर्टी है। और जो दूसरी काइंड है दैट इज रिलेटेड टू द सिविल लिबर्टीज, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल लिबर्टीज, पॉलिटिकल राइट्स एंड फ्रीडम्स। एंड अंडर दिस काइंड देयर आर थ्री फर्दर सब कैटेगरीज। Article 15, 16, 17 and 19 they deal with the civil and political rights and liberties. Article 18, 23 and 24 they directly deal with the economic rights and economic liberties. And Article 20, 21 and 22 they directly deal with the religious fundamental rights of the all citizens of the state. अब आते हैं थर्ड काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Third kind of fundamental rights, they are related to the non-discriminatory rights provided to the citizens of Pakistan by 1973 Constitution. Non-discriminatory rights means they are based on equality, and there are three articles which directly deal with the non-discriminatory rights, and they deal with the equality of the citizens of Pakistan. Article 25, Article 26 and Article 27. They are directly related to the non-discriminatory rights, mean the rights of equality provided to the all citizens of the state of Pakistan. अब देखते हैं individually, आहिस्ता आहिस्ता what kind of promises they are being made. कौन कौन से promises हैं which are being made by 1973 Constitution, article by article. पहला जो आर्टिकल है, जो वेरी फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 9 है, बल्कि उससे पहले आर्टिकल 8 को देखते हैं। आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 इज ऑफ द ओपिनियन के नॉट अ सिंगल लॉ और कस्टम वुड बी हैविंग फोर्स ऑफ लॉ if it would be coming in contradiction to the basic fundamental rights of the citizens of Pakistan. Yani no law, no custom or no usage of law would be in force in the state if it comes in conflict to the basic fundamental rights of the citizens of Pakistan. Every law would be considered as null and void if that law is going to suppress the basic fundamental rights of the citizens of Pakistan. अब ये कितना ज़बरदस्त लॉ है। आर्टिकल 8 कहता है no law would be considered as law if it comes in contradiction to the basic fundamental rights of the state, of the citizens of Pakistan. अब इसके अंदर याद रखिएगा, ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन कहता था no law which comes in conflict. लेकिन what kind of basic fundamental rights were being possessed by the people of FATA? FCR के तहत उनको डील किया जाए, उनके कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। और 71-72 साल से
वो FCR के तहत उनको डील किया जाता था। अनोमलीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये तो शुक्र हुआ 25th अमेंडमेंट व 26th अमेंडमेंट के बाद कि उनको पाकिस्तान के इक्वल सिटीजन कंसिडर किया जाने लगा। वो पहले भी थे लेकिन उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं थे। जब फंडामेंटल राइट्स नहीं थे तो इक्वल सिटीजन कैसे थे? हमारा आर्टिकल 8 कहता है। और कब जाकर, जब मुल्क की 72 साल की उम्र हो गई, फिर जाकर मुल्क के कुछ हिस्से, कुछ बाशिंदों को फंडामेंटल राइट्स मिले। बहुत बड़ी कंट्राडिक्शन, बहुत बड़ी अनामली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। FCR ख़त्म हुई अल्लाह अल्लाह का नाम लेकर। हाँ, कहीं इसीलिए इसको ड्रैकुलियन और ब्लैक लॉज कहते थे। और ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था ना FCR के तहत, और बेड़ा गर्क हुआ हमारे मुल्क का। ये तो शुक्र करें, अल्लाह अल्लाह करके कोई उनके राइट्स एक्नॉलेज किए गए, माने गए। और 100 मोटो तो वो चीनी पे तो हो सकता था, लेकिन फाटा के लोगों का जो राइट्स था उसके ऊपर कभी 100 मोटो नहीं आता था। और ये अनामली थी, और अल्लाह ने रहम किया, सैनिटी परवेल की, वी गॉट, एंड नाउ दीज पीपल आर इक्वल सिटीजन्स। अब उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आर्टिकल 9 क्या कहता है? आर्टिकल 9 कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी। नो पर्सन वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। आपके मुल्क के अंदर ये फंडामेंटल राइट है, इसको इसलिए इसको कहते हैं, ये जो फर्स्ट कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स की, इसको सुप्रीम लॉ कहते हैं। आर्टिकल 9 डील कर रहा है उससे। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ ऑफ लिबर्टी। आपके मुल्क के अंदर स्टेट कितने लोगों को मार रही है, और कितने नॉन स्टेट एक्टर्स सिटीजन्स को मान रहे हैं, कितने लोगों की जिंदगियां को प्रोटेक्शन हासिल है। चलो ये तो इस बात को छोड़ें, आपकी स्टेट कितने लोगों को गुर्बत की वजह से मरने दे रही है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज की वजह से मरने दे रही है, टॉर्चर से मरने दे रही है, कितने लोग मेडिसिन ना होने की वजह से मर रहे हैं, कितने लोग जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड की वजह से मर रहे हैं। क्या है ये? आर्टिकल 9 कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। फूड सिक्योरिटी की वजह से, वाटर स्कार्सिटी की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, और जो नॉन स्टेट एक्टर्स मार रहे हैं ऑन द नेम ऑफ रिलीजन और एथनिसिटी और लिंग्विस्टिक्स पेरियोडिकल डिफरेंसेस कितने, और स्टेट कितने लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। आर्टिकल 9 क्या कहता है, मुल्क में क्या हो रहा है, और स्टेट कितने लोगों को मार रही है, सब लोग आप देख रहे हैं। उसके बाद आर्टिकल 10, आर्टिकल 10 जो आपका है, किस चीज़ से डील करता है? कितनी खूबसूरत चीज़ लिखी है, सेफगार्ड्स एज टू द अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओह माय गुडनेस, अनबिलीवेबल। यानी कि ये आर्टिकल क्या कहता है, जो आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 आपका क्या कहता है कि आपके मुल्क के अंदर किसी शख्स को भी फजूल में अरेस्ट विदाउट एनी रीजन और डिटेंशन में नहीं रखा जा सकता। नो पर्सन वुड बी अरेस्टेड, डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। और फिर, और कोई भी जो शख्स है वो उसको विदाउट कस्टडी में 24 आवर्स के अंदर अंदर, इफ अ पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड, अगर उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? इट इज वेरी हॉरिफिक थिंग, वेरी वेरी हॉरिफिक थिंग। कंडीशंस हैं आर्टिकल 10 की, जरा गौर से सुनो। पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ग्राउंड्स व्हाई ही इज बीइंग अरेस्टेड, एविडेंस होना चाहिए। एंड ही इज हैविंग द राइट टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर्स, वो अपनी मर्जी का वकील कर सकता है।
24 आवर्स के अंदर अंदर उसको आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। ये नहीं है कि दबा के रख लें उसको और फिर, और अगर नहीं है मजिस्ट्रेट का ऑर्डर तो उसको रिहा करो। और अगर आपको ये सिंस ड्यू टू द वार अगेंस्ट टेररिज्म वी पीपल वर फेसिंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, तो उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत ज़रूरी थी। प्रिवेंटिव डिटेंशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उसकी एक पूरी बैकग्राउंड है प्रिवेंटिव डिटेंशन की। अब आते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया वी पीपल वर फेसिंग सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, इस वजह से प्रिवेंटिव डिटेंशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी देयर आर मॉडलिटीज विच आर बीइंग फाइनलाइज्ड। और अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में यू कैन नॉट पुट एनी पर्सन इन डिटेंशन बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 months अनलेस एप्रोप्रिएट बोर्ड ऑफ रिव्यू इज गोइंग टू गिव द परमिशन ऑफ इट। तो उसका, और फिर आर्टिकल जो 10A है जो आर्टिकल 10 है ये 18th अमेंडमेंट में बताया गया कि आर्टिकल 10A वुड बी इंश्योरिंग द फ्री ट्रायल। फ्री ट्रायल के ऊपर फ्री ट्रायल क्या है? यानी कि जो भी पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड according to the 1973 constitution is having the basic fundamental right to defend himself through a legal practitioner of his choice, or fair trial and due process would be provided to that person. लेकिन हमारे मुल्क में फेयर ट्रायल कितने लोगों को मिलता है? माल प्रैक्टिसेस ऑफ द सिस्टम की वजह से, शॉर्टकट्स की वजह से, और फिर वी यूजुअली यूज रेफरेंसेस एंड अप्रोचेस टू गेट द क्रिमिनल बीइंग एक्विटेड फ्रॉम द प्रोसेस, और दूसरे लोग जो हैं उनको फेयर ट्रायल का चांस ही नहीं मिल पाता। तो देयर आर डिफरेंट कंट्राडिक्शंस एंड अनॉमलीज विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये हमारी एग्जिस्टिंग जो जुडिशियल सिस्टम है उसकी वीकनेसेस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो प्रोवाइड कर रहा है हमें द राइट ऑफ फेयर ट्रायल एज द बेसिक फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 10A, लेकिन whether that article is being implemented in its true letter and spirits is another debate. ये एक अलग डिबेट है। उसके बाद आर्टिकल 10A के बाद जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है that is related to the prohibition of slavery, prohibition of forced labor. इस आर्टिकल 11 के तहत हमारे मुल्क में स्लेवरी को, जो पुराने ज़मानों के अंदर स्लेवरी वाज बेसिकली कंसिडर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया। लेकिन क्या स्लेवरी यही स्लेवरी थी कि फिजिकली सब्जुगेटिंग सम पीपल and building their relationship of master and slave? ऐसे ही है? ऐसा नहीं है। I personally believe that we are living in a society where still slavery is a norm. Slavery एक नॉर्म है। किस तरीके से नॉर्म है जी? आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो बैगरी है, ये जो सोशल वाइसेस हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ये इनडायरेक्ट काइंड ऑफ स्लेवरी एग्जिस्ट कर रही है हमारी सोसाइटी के अंदर। और फिर फोर्स लेबर के ऊपर क्राइटेरिया क्या बनाया गया? चाइल्ड लेबर के बड़े ज़बरदस्त कवानीन हैं, इंटरनेशनल कवानीन भी हैं, पाकिस्तान के अपने कवानीन भी हैं। इसके अंदर ये बताया गया कि जब तक कोई बच्चा 14 साल की उम्र हासिल नहीं कर सकता, उसको you cannot put that person by force to work on work. You cannot put that child by force on work जब तक उसकी उम्र 14 साल नहीं हो जाती। तो ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट ये प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 14 साल नहीं है
उसको ज़बरदस्ती बाय फोर्स काम पे नहीं लगाया जा सकता। तो जो आर्टिकल ये जो 11 है ये डायरेक्टली डील कर रहा है विद द प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी एंड द प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर। लेकिन मेरा ख्याल है अभी भी 14 साल कोई भी बच्चा वो बच्चा ही कंसिडर होता है जब तक उसकी उम्र 18 साल ना हो जाए। तो जब राइट टू कास्ट वोट 18 साल है, अडल्ट की उम्र ही 18 साल है, तो बच्चों को वर्क बाय फोर्स वर्क पे डालना कि ये जो 14 साल की जो कंडीशन है इसको भी ख़त्म कर देना चाहिए और ये साबित कर देना चाहिए कोई भी पर्सन उस वक़्त तक काम पे नहीं लगाया जा सकता ज़बरदस्ती जब तक उसकी उम्र 18 साल ना हो। अब हमारे मुल्क में आपने देखा 6-6, 7 साल के बच्चे बेचारे रिक्शा स्टैंडों पर, कंडक्टर्स के तौर पर, वर्कशॉप्स पर, मैकेनिक्स के तौर पर, फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, भट्टों के ऊपर काम कर रहे हैं। अगरचे गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं लेकिन इनको इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। मैं तो जब अपने मुल्क में अपने बच्चों के हालात देखता हूँ तो मुझे वो विक्टोरियन इंग्लैंड याद आता है, जब बच्चे सुबह बेचारे 4 बजे उठते थे और रात 11 बजे तक मुसलसल काम करते थे। बीच में ना उनको रिसेस मिलती थी, ना उनको फूड मिलती थी। और उस ज़माने में बच्चों को दे वर बीइंग कंसिडर एज एन इनपुट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और वो बेचारे माल न्यूट्रिशन और एक्सेसिव वर्कलोड की वजह से एग्जॉस्ट होकर गिर जाते थे और उनके वालिदैन को कुछ नहीं मिलता था। और हमारे मुल्क में भी अगरचे उतने बुरे हालात नहीं हैं लेकिन स्टिल कहीं बहुत ज़्यादा जो स्टोरीज़ आती हैं भट्टों के ऊपर, मैकेनिक्स जो काम कर रहे हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनके हालात ऐसे ही हैं और बहुत बुरे हालात हैं उनके। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिकली ये चीज़ें बेसिक फंडामेंटल राइट्स के तौर पे हमें दे दी। अब ये हुकूमत एग्जीक्यूटिव का काम है कि उसको वो इम्पोज करे और जुडिशरी का काम है वो देखे कि वेदर द बेसिक फंडामेंटल राइट्स बीइंग एनफोर्स इन आवर कंट्री और नॉट। अब जो आर्टिकल 12 है, आर्टिकल 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, यानी कि आप किसी भी शख्स को उस वक्त तक सज़ा नहीं दे सकते जब तक उसका जुर्म को लॉ डिक्लेयर ना कर दे कि ये पनिशेबल है। इसको रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट कहते हैं। यानी कि अगर एक बच्चे ने काम किया है और लॉ उसको क्राइम डिक्लेयर ही नहीं करता तो आप उसको उस बंदे को कैसे सज़ा दे सकते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है अगर इफ अ वर्क इज बीइंग डन बट द लॉ डज नॉट measure that action of the person as illegal or punishable, then that person must not be punished. और दूसरा क्या है, किसी भी शख्स को उसके किए हुए जुर्म से ज्यादा सजा नहीं देनी चाहिए। ये आर्टिकल 12 डिक्लेयर कर रहा है। एक बंदे ने काम किया है लेकिन लॉ इज नॉट गोइंग टू परसीव इट एज अ क्राइम, देन दैट पर्सन मस्ट नॉट बी पनिश्ड। और ये बेसिक फंडामेंटल राइट है। और दूसरी राइट क्या है जी कि इफ अ क्राइम इज बीइंग कमिटेड देन पनिशमेंट मस्ट बी गिवन अकॉर्डिंग टू द क्राइम, नेचर ऑफ क्राइम। ऐसा नहीं है कि वन पर्सन इज गोइंग टू कमिट रॉबरी, एक रॉबरी कर रहा है बंदा, अगरचे ये कंडेमेबल क्राइम है लेकिन द पनिशमेंट इज गिवन ऑफ द कैपिटल पनिशमेंट, उसको कैपिटल पनिशमेंट दे दी गई है। तो ऐसा नहीं है। ये हमारा जो आर्टिकल 12 है वो बेसिक फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है कि उतनी सज़ा मिलनी चाहिए जितना उसने क्राइम किया है, इससे ज़्यादा नहीं मिलनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये जो आर्टिकल 12 है ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट दी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट इंश्योर कर रहा है। आर्टिकल 13 का डबल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए।
यानी कि एक जराइम के ऊपर आर्टिकल 13 शो कर रहा है कि किसी भी पर नो पर्सन शैल बी परसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कोई भी शख्स उस वक्त तक परसिक्यूट नहीं किया जा सकता फॉर द सेम क्राइम फॉर मोर देन वंस, यानी कि एक मुकदमे में उसको सज़ा हुई है फिर दोबारा मुकदमा चला के फिर उसको सज़ा दे दी जाए। ये आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल पनिशमेंट। और जो अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिलेटेड टू द इनवायबिलिटी ऑफ द डिग्निटी ऑफ मैन। यानी कि आप कोई जो एग्जेक्टिव है, ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे कैन नॉट अडॉप्ट सम मेजर्स थ्रू विच द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स दे आर बीइंग वायलेटेड। वायलेट कर दी गई हैं डिग्निटीज़, इंसानों की डिग्निटीज़ वायलेट कर दी गई है। तो ये बेसिकली क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बेसिकली इज रिलेटेड टू दी प्राइवेसी ऑफ होम, जिसको चादर चार दीवारी कहते हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज चादर चार दीवारी का तकद्दुस को पामाल नहीं कर सकती। दिस इज द डिग्निटी ऑफ मैन। एंड इफ आप यानी कि बगैर वारंट के उसके घर पे आपने छापा मारा, खवातीन की बेहरमती की, चादर चार दीवारी की बेहरमती नहीं कर सकते, ये फंडामेंटल राइट है। एंड आर्टिकल 14 इस बात को इंश्योर कर रहा है। और फिर इसका जो सब क्लास है, दैट इज रिलेटेड टू दी नो पर्सन वुड बी सब्जेक्ट टू टॉर्चर जस्ट विद द एम टू एक्सट्रैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट। कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि थ्रू टॉर्चर यू कैन नॉट ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एविडेंस। और टॉर्चर के जरिए कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं कर सकते आप। बहुत सारा हमारे आपको मिला 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, और 3rd डिग्री टॉर्चर की वजह से इंसान वो भी अपने जुराइम को कबूल कर लेता जो उसने कभी जिंदगी में किए नहीं होते। और फिर जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसके खाते में वो भी जान दे देते हैं जो डर के मारे वो बेचारा मार रहा होता, हाँ मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। तो ये बेसिकली जो आर्टिकल 14 है, दैट इज रिलेटेड टू दी डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ मैन। ये बेसिक फंडामेंटल राइट है। डिग्निटी इंश्योर करें सिटीजन्स की, प्राइवेसी इंश्योर करें सिटीजन्स की। लेकिन बच्चों असल में प्रॉब्लम क्या है हमारे मुल्क के अंदर? प्रॉब्लम हमारे मुल्क के अंदर ये है कि हमारे मुल्क के अंदर एनफोर्सेबिलिटी नहीं है। एग्जेक्टिव इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज दे आर हैविंग देयर माल एडमिनिस्ट्रेशन, माल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन, और जिसकी वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं इनको इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट्स दे आर नॉट बीइंग इन्फोर्स इन आवर कंट्री। याद रखिएगा, ये मेरी एक बात याद रखिएगा, ये जो सुप्रीम फंडामेंटल राइट्स हैं ये इंश्योर करते हैं कि वेदर अ सोसाइटी वुड बी जस्ट और अनजस्ट, वेदर अ स्टेट वुड बी जस्ट और अनजस्ट, if these fundamental rights they are going to be implemented and enforced in our country in its true letter and spirit, the society would be just, the state would be just. And if these things they are not going to be enforced in its true letter and spirit, then society would be unjust, state would be unjust, and unjust state and society would no longer sustain itself, would no longer would be sustaining itself. It cannot sustain for a longer period of time. It would be collapsed. इसलिए इस्लाम के अंदर भी लिखा गया है कुफर की हुकूमत रह सकती है, जुल्म की हुकूमत नहीं। ये जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं ये अगर इन्फोर्स होते हैं तो जस्टिस प्रोवाइड होता है, अगर ये इन्फोर्स नहीं होते तो जुल्म होता है, और जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। वो स्टेट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है जो जुल्म करती हैं। कुफर की हुकूमत रह सकती है, और कुफर आपको पता है दुनिया के अंदर कितनी कुफार की स्टेट्स हैं, दे आर इंश्योरिंग जस्टिस। तो
ये इतना ही। इससे आगे आर्टिकल्स हम अपने पार्ट 2 के अंदर देखेंगे, अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज हमने बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ राइट्स, द डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, एंड देन द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स, इन चीज़ों को देखा। देन वी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट दी part 2 of 1973 constitution, and we talk about that there are 2 chapters within this part 2 of 1973 constitution, and chapter 1 deals with the basic fundamental rights, and article 8 to article 28, these 20 articles deal with the 23 basic fundamental rights provided to the citizens of पाकिस्तान के citizens को provide किए गए, और 3 fundamental rights they are earlier, these articles were dealing with the 20 rights, and 3 more fundamental rights are given to the citizens of Pakistan under the 18th Amendment: the right to fair trial, the right to information, and right to free education. In my next lecture, we will be starting the analysis of the basic fundamental rights starting from Article 15 to Article 28. This is all about today. See you inshallah in my next immediate class.